topic we are going to start today is about nitrogen compounds, and in this chapter we are going to look at the chemistry of some nitrogen compounds such as amines, amides, nitriles. Amides are one of the most important functional groups of organic chemistry. Amides are weak bases compared to amines, but they play an important role in many chemical reactions. Amines are building blocks of many organic compounds. इसमें हमने तीन चीज़ें यहाँ पे उसने कहा है स्टडी करनी है. अमाइड्स को हम स्टडी करेंगे, अमाइंस को हम स्टडी करेंगे और नाइट्राइल्स को हम स्टडी करेंगे. अमाइंस वो होते हैं जिनमें NH2 ग्रुप लगा होता है अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है. और जैसे इसमें अब प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है, टर्शरी है. सबसे पहले हम अमाइंस को ही डिस्कस करेंगे. प्रेपरेशन किस तरह से होती है? बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद अमोनिया. अमोनिया का जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास अमाइंस बनेंगे. जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन NH3 रिएक्ट्स विद CH3CH2Br टू गिव CH3CH2NH3 प्लस Br नेगेटिव, ठीक है. तो फिर ये Br नेगेटिव जो है ये पूरा एक कंपाउंड बनेगा और ये फिर NH3 के साथ रिएक्ट करके इथाइल अमाइन दे देगा हमें. तो इस तरह से हम क्या डाइथाइल अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं. क्वाटरनरी इथाइल अमाइन को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं. At the end of the reaction, the addition of strong alkalis such as KOH liberates free amines from their salt, but the quaternary salt is unaffected. The three types of amines are separated by fractional distillation. Using success ammonia, primary amines are produced, but the yield is low by the reduction of nitrogen-containing functional groups. दूसरा मेथड जो है वो रिडक्शन मेथड होता है, जिसमें हम रिडक्शन किस तरह करते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की हम रिडक्शन करते हैं. जैसे कि नाइट्राइल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको हम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करके अमाइन में रिड्यूस करवा सकते हैं. उसके अलावा कैटालिटिक रिडक्शन होती है, उसमें भी हम नाइट्राइल को यूज़ करेंगे और हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो हमें अमाइंस मिलेंगे. उसके बाद अमाइड्स की भी रिडक्शन हो सकती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करके, तो हमें एक अमाइन और वाटर मिलेगा. बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो इन अमाइन द नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज़ नियरली अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. इट फॉर्म्स 3 sigma bonds with 3 sp3 orbitals, while the fourth non-burning sp3 hybrid carries a pair of electrons. The lone pair of electrons on the nitrogen atom makes them basic in nature. The lone pair in amines behaves in the same way as in ammonia. When an amine is dissolved in water, the nitrogen lone pair accepts protons from water molecules to produce alkyl ammonium ion and hydroxide ion. The formation of hydroxide ion makes the solution alkaline, so the aqueous solution of amines are alkaline. However, amines are more basic than ammonia. So RNH2 है हमारे पास, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो RNH3 प्लस हाइड्रोक्सिल बनाएगा, ठीक है. रिलेटिव बेसिसिटीज़ ऑफ एक्वस अमोनिया, इथाइल अमाइन एंड फिनाइल अमाइन. बेसिसिटीज़ को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे अमोनिया की बेसिसिटी जो होती है वो उसकी पी के वैल्यू जो है 4.75 है, इथाइल अमीन की 3.27 और फिनाइल अमीन की 9.36 है. सो द लोअर द पी के वैल्यू द स्ट्रॉन्गर द बेस. तो जिसकी सबसे कम, जैसे कि इथाइल अमाइन है इसकी सबसे कम है ना, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी बेस. इस तरह से ये वर्क करता है. द ईज़ विद विच अच्छा ईज़ किस पर डिपेंड करता है? बेसिक नेचर. The ease with which its lone pair can capture the hydrogen ion, stability of ion formed after receiving the hydrogen ion. Ethylamine and ammonia have the following structure. An ethyl group is an electron donating group. This increases the electron density on the nitrogen. This makes the nitrogen lone pair more electron rich and more attractive to hydrogen. The ethyl ammonium ion formed, which is more stable than a simple ammonium ion. This is because the ethyl group reduces the positive charge. Phenylamine is an aromatic primary amine. The lone pair of electrons and nitrogen is involved in resonance and delocalizing over the ring, so this lone pair can no longer combine with proton. So इसमें से जो फिनाइल अमीन होती है वो हमारी क्या है, एक एरोमेटिक अमीन है, ठीक है. उसमें हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा हुआ होता है, NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है, तो हमारी फिनाइल अमीन बन जाती है. ठीक है, जैसे कि इस तरह से ये होता है कुछ इसका स्ट्रक्चर. ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ हमारे NH2 लगा हुआ हो तो ये हमारे पास क्या होती है, फिनाइल अमाइन इसको हम बोलते हैं. सो इसके अंदर रेजोनेंस होती है, ठीक है. और रेजोनेंस क्योंकि बेंजीन रिंग में रेजोनेंस मौजूद है, तो जो लोन पेयर होते हैं ना नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर था ना,
तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ठीक है। अभी जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या करता है, ये जिस लोन में क्या नो लॉन्गर पाइन विद प्रोटॉन 10 ये ना इन्वॉल्व होता है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है ये लोन पेयर, ठीक है। डीलोकलाइजेशन में ये लोन पेयर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो इस वजह से ये वाला लोन पेयर जो है ना, ये अब प्रोटॉन वगैरह के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिनाइलमीन एक वीक बेस होती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें बेसिसिटी का, तो इथाइलमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर अमोनिया, फिर फिनाइलमीन है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नाइट्राइल्स को प्रिपेयर करने के तरीके जो हैं वो क्या हैं। फर्स्ट इज़ KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम इथाइल ब्रोमाइड का, ठीक है, जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। तो हमारे पास सियानोमीथेन और सियानोइथेन बने हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ करेंगे, HCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन बनेगा। फिर एसिटल्डिहाइड के साथ हमारे एसिटल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन बनेगा, ठीक है। इसमें ये OH और H ग्रुप लगे होते हैं और ये H और CN इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड तो इधर CH3 आ जाएगा, यहाँ पे दोनों CH3 है तो इधर भी दोनों CH3 आ जाएंगे। तो इस तरह से ये एसीटोन सियानोहाइड्रिन बन जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स है। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स में हमने एक CH3CN लेना है, इसको वाटर और HCl के साथ रिएक्ट करवाना है। एसिटिक एसिड प्लस इथेनोइक एसिड बनेगा। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के अंदर हमने CH3CN लेना है वाटर के साथ, प्लस इसमें ऐड करवाना है हमने NaOH, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट प्लस NH3। अगर हम सोडियम एसीटेट को फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो एसिटिक एसिड और NaCl आ जाएगा। फिनाइलमीन एंड एजो कंपाउंड्स, रिएक्शन ऑफ फिनाइलमीन विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ फिनाइलमीन जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर बताया था उसको रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाइलमीन आ जाएगी, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर की होती है। रिएक्शन ऑफ फिनाइलमीन विच HNO2 एंड NaNO2, preparation of diazonium salt. The solution of phenylamine in hydrochloric acid is cooled in ice. A sodium or potassium nitrate solution is also ice cooled. The ice cooled solution of nitrite is slowly added. A solution containing phenyl diazonium chloride is produced. It is known as benzene diazonium chloride. The temperature of the reaction mixture should never go above 500 degrees C. Diazonium salts are highly unstable and tend to decompose. तो ये हमारे पास फिनाइल अमीन है, इसको HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। इन द प्रोसेस ऑफ HCl हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आएगा प्लस वाटर। अब रिएक्शंस है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के, ठीक है। ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ बनी है ना, जो प्रोडक्ट आई है, इसके हमने रिएक्शंस करवाने हैं। तो इसके रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। पहला रिएक्शन वाटर के साथ है, हमें क्या बना है, एक अल्कोहल, ठीक है, फिनाइल अल्कोहल है, या फिनोल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, फिनोल और साथ N2 प्लस HCl। उसके बाद रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड विद फिनोल। अब ये हमारे पास जो फिनोल आ गया ना, ठीक है, इसको हमने पहले NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सोडियम फेनऑक्साइड बनेगा। फिर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को सोडियम फेनऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ये हम लोग एजो कंपाउंड्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, जो एज अ डाइज यूज़ होते हैं, ठीक है। ये 60% जो होते हैं वो टोटल डाइज के होते हैं। और 70% ऑफ ऑल डिस्टिल्ड डाइज आर एजो कंपाउंड्स। द N ट्रिपल बॉन्ड N यूनिट इज़ N डबल बॉन्ड N यूनिट इज़ एजो ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं, एजो ग्रुप। कंपाउंड्स कंटेनिंग दिस फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एजो डाइज। इन एजो डाइज टू बेंजीन इट्स आर लिंक्ड बाय नाइट्रोजन ब्रिज, ठीक है। अब एजो कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखें, एक साइड पे बेंजीन रिंग होती है, दरमियान में N डबल बॉन्ड N होगा, इस साइड पे फिर बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे हाइड्रोक्सल होगा, ठीक है। अब दूसरी भी होती हैं, जब अगर बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का हम रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाएं तो हमारे पास एजो डेरिवेटिव आएगा जो कि एनिलीन येलो भी येलो कलर का डाई होगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ अमाइड्स। अब अमाइड्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, बाय द रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड्स में आ जाते हैं। अमोनिया के साथ का रिएक्शन करवाएंगे तो थैनमाइड प्लस HCl, ये हमारे पास पहला रिएक्शन होगा। दूसरा बाय द रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड विद प्राइमरी अमाइन, तो एसाइल क्लोराइड का प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो N मिथाइल मिथानमाइड बनेगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड होगी, ठीक है। मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, नाइट्राइल इथेन नाइट्राइल, ठीक है।
plus water plus HCl gives us ethanoic acid plus NH4Cl. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास ये नाइट्राइल होगा प्लस NaOH gives us sodium acetate. Sodium acetate will further react with HCl to give acetic acid plus NaCl. अब बेसिसिटी ऑफ अमाइड्स की अगर हम बात करें, अमाइड्स आर मच वीकर बेसिस दैन अमाइंस. द अमाइडो ग्रुप एज अ कार्बोनाइल ग्रुप which is extremely electronegative. It pulls electron towards it by resonance as well as inductive method. So NH2 groups has a little protonation ability. So इसमें अमाइडो ग्रुप में जो हमारा कार्बोनाइल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है और NH2 के पास जो होती है ना वो फिर इस तरह से क्या होता है, कम एबिलिटी रह जाती है प्रोटोनेशन की. तो द अमाइंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन इज नॉट डिलोकलाइज्ड. मोरओवर द alkyl group tends to increase the electron density around nitrogen atoms, so amines have a strong ability to attract protons. So अमाइड्स जो है वो वीकर है और अमाइड्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है. ठीक है, अमाइड्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे होते हैं, जबकि अमाइड्स के अंदर जो लोन पेयर्स होते हैं वो डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमने ऊपर पढ़े ना अमाइंस, ठीक है, अमाइंस जो पढ़े हमने, तो अमाइंस के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बोनाइल नहीं है. ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन नहीं है, तो उसकी वजह से फिर इसके कोई वो रेजोनेंस में इसका कोई रोल नहीं होता. इसके जो NH2 के जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स होते हैं उसका, तो इस वजह से ये अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ हाइड्रोजन को और इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेसिस देते हैं. लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो अमाइनो एसिड्स है, जो इसी के साथ लिंक्ड होगा. अमाइनो एसिड्स क्या हैं, हम ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. ये दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिससे मिलके ही बनता है. प्रोटीन की सिंथेसिस में ये वर्क करते हैं. इसमें एसेंशियल भी होते हैं, कुछ 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, 10 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक साइड पे साइड चेन होगी. ठीक है, कार्बन मिडल में होगा, इसका कायरल कार्बन होता है. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एक साइड पे, दूसरी साइड पे NH2 ग्रुप होगा, एक साइड लास्ट पे हाइड्रोजन होगी. ठीक है, 2 अमाइनो एसिड है और अल्फा अमाइनो एसिड है. इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड बहुत बेसिक अमाइन एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. इंटरनल ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर. ठीक है, ज्विटराइन बनता है. जैसे कि यहाँ पे हम ज्विटराइन का देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली जो ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. और आयनिक इंट्रैक्शन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं, मोर एनर्जी चाहिए होती है इनको ब्रेक करने के लिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. जैसे कि ये एक अमाइनो एसिड है और दूसरा अमाइनो एसिड है. ठीक है, इसके दरमियान में ये जो वाटर है ये रिलीज़ होगा और इस नाइट्रोजन इस कार्बन के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा. सो इस लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं और जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होता है वो डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है. ये फर्दर भी आगे मज़ीद जो है इसकी हो सकती है. बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड एंड डाईपेप्टाइड्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स. This method takes advantage of the movement of these molecules. The speed at which these molecules move in the electric field is influenced by the pH of the medium. With the pH of the medium, the degree of ionization of amino acid changes. At the cathode, amino acid usually exits the protonated state and moves it at low pH. When the pH is high, amino acids exist in their deprotonated state. As a result, they migrate towards the positive anode. The movement of dipeptides in electric field depends on the net charge of the molecules. Altering the pH changes the charge on amino acid and dipeptide molecule. Behavior जो होता है amino acid और dipeptide का in electric field, तो इसमें हम लोग एक टेक्निक को यूज़ करते हैं, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसकी मदद से हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को अलग करते हैं. ठीक है, ये पीएच के ऊपर डिपेंड करती है. एट द कैथोड अमाइनो एसिड प्रोटोनेटेड स्टेट में होता है. ठीक है, और एट द एनोड डेफिनेटली वो एक नेगेटिव स्टेट में डीप्रोटोनेटेड स्टेट में होगा. हाई पीएच पे डीप्रोटोनेटेड स्टेट पे होगा, लो पीएच पे प्रोटोनेटेड स्टेट पे होगा.
सो ये हमारे altering the pH changes the charge in minor molecule also alters. So this is all with this chapter. Thanks for listening.